Hello. Good morning, class. Attendance will roll number 1, Present, ma'am. 9, 10, 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, 41, 42, 53, Present, ma'am. 53 present. 54, 56, 58, Present, ma'am. 58 present, बोला. Yes, ma'am. 58. 59, 54 B. 54 कर दिया. 59, 60, 61 present, 63, 65, 67 present, 68, 69, 73 present, 74, Present, ma'am. 75, Yes, ma'am. 26, 77, 79, 1505, 1506, Present, ma'am. 1508, Yes, ma'am. 1510, Present, ma'am. 1512, 1515, 1516, 1518, Present, ma'am. 1519, 20, Kavita, 21, Muskan, Present, ma'am. 25, 29, 30, 31, 32, 33, Yes, ma'am. 35, 36, 42, 44, Present, ma'am. 43, ma'am. Present, ma'am. 44. 45, Present, ma'am. present.
45, just a minute, 45, 40, present है 46, present है 47 भी मैम 510 मैम 510 गुरप्रीत 45 10 भी present कर Ma'am, दिया 46 present. 1519. 46 35 Yes, ma'am. present है, ठीक है, हाँ आगे बोलो। 1519. 15 19 present कर दिया और 35 present है, कर दिया 15 Ma'am, 1544. 40 present है बच्चे। अब सुन लो present मैम 576 576 प्रेजेंट ही सुन लो। रोल नंबर 1 10 12 14 16 33 53 54 56 58 61 67 73 74 75 76 1506 1508 1510 1518 1519 1521 1505 15 5 15 6 15 8 15 10 10 है शंकर मैम 510 दी लगाती 10 से लगाती बच्चे 15 10 है शंकर 15 18 15 19 15 21 15 33 35 43 44 45 46 47 that's it Ma'am, 16. 15 16 okay okay class I hope सबने कल insertion sort पढ़ ली होगी have you gone through it Ma'am, 1510 present. 15 10 okay कर दिया present पहले नहीं बोलना जैसे बोल रही थी। इंसर्शन सॉर्ट पढ़ी सी कल यस मैम कोई डाउट नो मैम फाइन कोई डाउट है तो बताओ नहीं तो मैं आगे हीप सॉर्ट पे चल रही हूँ आज नहीं नो डाउट मैम आज हम करेंगे नया टॉपिक दैट इज द heap sort technique this is the new technique for you people क्योंकि last time हमने ये study नहीं की थी data structures before starting with heap sort technique हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए what do you mean by a heap tree हमने एक नॉर्मल ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है ट्री क्या होता है रूट मैम हाँ जी ट्री क्या होता है दैट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ collection of One node. nodes it is a non linear data structure that is a collection of nodes ठीक है where the starting node or the very first node is called the root node that defines the identity of the tree जिसके साथ हम tree की identity define करते हैं the rest of the nodes are their child nodes any node can have one or more than one child node depending on the kind अगर वो binary है तो maximum of 2 if it is a normal tree then multiple nodes can be the child node of a single node or of a parent node ये तो normal definition होगी tree की got it all of you यस मैम ठीक है अब जो heap tree है what do you mean by a heap tree heap tree a heap tree is basically a binary tree first of all ठीक है अब बाइनरी ट्री क्या होता है जिसके मैक्सिमम 2 नोड्स होते हैं 0 1 और 2 एंड देयर आर 2 कंडीशंस that needs to be satisfied in order to consider that binary tree as a heap tree. What are those 2 conditions? The very first condition is the structural property. ठीक है? That is the structure of the heap tree must obey
the complete binary tree. I hope सबने ट्री में complete binary tree पढ़ा होगा. तो इसको हम कहते हैं almost complete binary tree property hold करनी चाहिए, that is ACBT. Almost complete binary tree होना चाहिए. Explain करती हूँ कैसे. Next property, जो condition जो एक ट्री को ओबे करनी पड़ेगी in order to be treated it as a heap tree is the ordering property. Ordering property means ordering property. Ordering property means the tree must be either a min tree or min heap tree, or it should be of a max heap tree. दो trees ही possible है. They must be in that order. Then only the tree would be considered as a heap tree. ठीक है. अब इन दोनों पॉइंट्स को पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स कहते क्या है हमें. From the structural property, if I'll be drawing the structure of a tree, let it be these are some of the nodes. क्योंकि ये बाइंडरी ट्री है, पहली बार दो से ज्यादा नोड्स नहीं हो सकते. लेट इट बी दिस इज 11, कुछ भी वैल्यूज ले लो. दिस इज 12, दिस इज 13. ठीक है. Then let it be, I'll be drawing over here the 5 value, then this is the 6 value. If I view this tree, is it a complete binary tree? No मैम. Complete binary tree क्या होता है? मैम जिसमें जिसके दो उसके- नोड्स हो, दो Yes, तो sir. हैं इसके भी. हाँ तो फिर है मैम इसके मतलब नहीं है ना 12 के. कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या रहती है भाई? जिसके दो नोड्स हो. बच्चे वो तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम ऑफ 2 नोड्स. किसी भी नोड के मैक्सिमम ऑफ 2 नोड्स है, दैट ट्री इज कंसीडर्ड एज अ बाइनरी ट्री. बट व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट बाइनरी ट्री? मींस एवरी मैम सभी क्यों नहीं चाहिए दो नोड? जो भी आगे दो जैसे दो पार्ट्स है ना 11 के बाद 12 और 13, हाँ मैम जी दोनों की दो दो पार्ट्स हो मैम वो कंप्लीट होता है. माय गॉड बच्चे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री उस ट्री को बोलते हैं जिसमें हर लेवल, each level of the tree contains the maximum possible elements except the last level, and that last level also has to be completed in a left to right manner. That tree is termed as a complete binary tree. अब अगर मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, जैसे मैंने कहा फर्स्ट लेवल है 2 रेज टू पावर 0, लेवल 0 है ना, 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 एलिमेंट, रूट एक एलिमेंट होता है. नेक्स्ट लेवल है लेवल 1, दैट इज 2 रेज टू पावर 1, मैक्सिमम ऑफ 2 वैल्यूज यहाँ पे जा सकती हैं. नेक्स्ट जो है सेकंड लेवल 2 रेज टू पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4 नोड्स. ठीक है. लास्ट लेवल कंप्लीट हो ना हो, it's not compulsion, but the node should be in left to right manner. That kind of tree is termed as
हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम विद द लास्ट लेवल इज देयर शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 4 नोड्स कैन बी देयर। 2 नोड्स हैं लेकिन वो राइट चाइल्ड के हैं नोड्स। अगर यही नोड्स 5 और 6 लेफ्ट चाइल्ड के होते, राइट चाइल्ड के चाहे ना भी होते, देन इट वुड बी ओके, देन आई कैन कंसिडर इट एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहली कंडीशन तो कंप्लीट Yes, बाइनरी ma'am. ट्री के लिए ये है, ऑल द लेवल्स शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। अब इसमें ये भी नहीं हो सकता कि जैसे ये एक नोड है, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड है, फिर उसके 2 चाइल्ड्स हैं, नहीं, क्योंकि ये लेवल ही कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 2 नोड्स होने चाहिए तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो ऐसे ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। और जो लास्ट लेवल है वो चाहे कंप्लीट हो ना हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट द थिंग इज जितने भी नोड्स हो दे मस्ट बी प्लेस्ड इन लेफ्ट टू राइट मैनर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका एक हो गया इसका भी एक होता, तब भी नहीं था, जैसे इसका एक, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पहली बात तो उस ट्री को ओबे करनी पड़ेगी अगर उसको हीप ट्री की डेफिनेशन में आना है। इट शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ACBT। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बोली थी दैट इज द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि या तो वो मिन हीप हो या वो मैक्स हीप को ओबे करे। मिन हीप मैक्स हीप नाम से डिफाइंड है, आई विल बी ड्राइंग इट नेक्स्ट। मिन हीप और मैक्स हीप का मतलब क्या है कि रूट नोड के ऊपर फोकस करो। मिन हीप का मतलब क्या है? जो भी ट्री आपका बनेगा, ठीक है, उसमें जो रूट नोड है दैट शुड बी द मिनिमम। अब इसके जो नोड्स हैं, लेट इट बी दिस इज 9 एंड दिस इज लेट इट बी 14। ठीक है, तो इसके फर्दर जो 2 नोड्स होंगे, लेट इट बी, आई एम कंप्लीटिंग इट, तो let it be, it would be 10, then this would be 11. Let this, the 2 nodes for this will be 12 and this would be 16 kind of. अब इसमें क्या है? min heap का मतलब क्या है? The root node should be minimum. अगर मैं पूरे ट्री का रूट नोड देखती हूँ, 5 is the smallest element, ठीक है। अगर मैं 9 को देखती हूँ इस ट्री में से, तो आउट ऑफ दिस ट्री 9 इज द स्मॉलेस्ट, उसके दोनों चाइल्ड से वो बड़ा है। अगर इस 14 को देखती हूँ, बोलो कृतिका। ये इक्वल भी हो सकता है। हाँ जी, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम केसेस को हम डिप्लोमा लेवल पे नहीं लेते बच्चे। इक्वालिटी में आपको उतनी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अगर हम हीप सॉर्ट की, अगर सॉर्टिंग की भी बात करते हैं, बबल सॉर्ट में, मैंने आपको कितनी बार बोला बबल सॉर्ट ले ले, सिलेक्शन सॉर्ट ले ले, द एलिमेंट्स कैन बी सेम, बट उनके ऊपर वो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, इट विल टेक इनटू कंसर्न अ नंबर ऑफ पासेस एंड अ नंबर ऑफ कंपैरिजंस, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम दैट नीड टू बी एक्सक्लूडेड। लेकिन इनिशियल लेवल्स पे हम इनको एक्सक्लूड नहीं करते, बट क्रिटिकल केसेस में हम ये कंपैरिजन भी लेके चलते हैं कि हमें क्यों उस पे वेस्टेज करना टाइम का। हो सकते हैं सेम, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी एलिमेंट सेम हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। हाँ जी, ठीक है बच्चे, सेम हो सकता है, पर मैं वो अभी केस नहीं ले रही। अभी मैं सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ही इसको कंसर्न में ले रही हूँ। अब अगर मैं बात करती हूँ लेफ्ट सब ट्री की बात की, अगर मैं इसका रूट नोड बात करूँ 9,
9 10 से भी बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द मिन हीप प्रॉपर्टी। बट यही अगर बात मैं राइट सब ट्री की करती हूँ तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि 14 अगर रूट नोड है तो 12 उससे छोटा है, तो दिस इज नॉट अ मिन हीप। इसको मिन हीप के लिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 होना चाहिए था, देन आई कैन से दिस इज अ मिन हीप। ठीक है, तो मिन हीप को ठीक है, समझ लग गया मेन हीप। ऐसे अगर मैक्स हीप की बात करूं मैं, मैक्स हीप में क्या होगा, द रूट नोड शुड बी द बिगेस्ट वन, लेट इट बी, इट वुड बी ऑफ 100 वैल्यू। ठीक है, उसके नीचे जो वैल्यू है लेट इट बी दैट इज अ 90। ठीक है, then the left and the right child would hold the value, let it be this is holding 60 value, this can hold 80 value. This can be possible कि left child बड़ा हो, right child छोटा हो, that is not a problem. The problem is कि the need is to focus on the parent child. Parent child अपने child node से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये भी possible है, this is true, ये fact है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, let it be the 30 is a value to right child of 100, तो 30 के लेफ्ट में 10, उसके राइट में 5। अगर मैं अब इसको मैक्स हीप की प्रॉपर्टी के लिए चेक करूं कि ये मैक्स हीप है कि नहीं है, तो व्हाट इज 100, 100 इज ग्रेटर देन 90 एंड 30, ट्रू, बड़ा है। अब अगर 90 पे फोकस करूं अपने उसके सब ट्री पे, तो 90 80 और 60 दोनों से बड़ा है, ट्रू। अगर 30 पे फोकस करो इस राइट सब ट्री पे, तो 30 इज ग्रेटर देन 10 एंड 5, ओके। तो दिस टोटल इज अ मैक्स हीप। नो डाउट, लेफ्ट बड़ा है, राइट छोटा है, लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा, कोई फर्क नहीं, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी ओबे करवानी है उसकी, कंपेयर टू देयर चाइल्ड नोड्स। इज दैट ओके विद यू पीपल? क्लियर है? अब हीप ट्री किसको कहते हैं? Yes, ma'am. एक तो उसका स्ट्रक्चर Yes, कंप्लीट ma'am. होना चाहिए, Yes, सेकेंडली द मिन और द मैक्स हीप प्रॉपर्टी हैज टू बी ओबेड। बच्चे अपना पूरा म्यूट रखा करो। ठीक है, अब सेकंड बात है, तुम कहोगे ये तो मैक्स मिन बन गया, बच्चे मैंने सॉर्टिंग करनी है। अगर ये पहली देखूं, ठीक है, या दूसरी देखूं, दे आर नॉट सॉर्टेड, मुझे इनको बाद में सॉर्ट करना है। अभी सॉर्टिंग का प्रोसीजर लगा रहा है, लेकिन बिफोर सॉर्टिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हीप ट्री, एंड सेकेंडली the two things I'll be discussing with you people is the insertion and the deletion process in heap tree. Then only we can do the sorting procedure. यहाँ तक क्लियर? अगर heap tree की definition, then I'll be starting with the insertion procedure. Insert कैसे करते हैं? Can I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा मैम, ये हीप सॉर्टिंग टेक्निक, मैम इसको भी लिखना ना फाइल में? हाँ जी, सब लिखना है। अब बात आती है इंसर्शन की। The insertion to the heap tree can be done in two ways. First is the insertion by end to end, yeah, by one. Insertion to the heap tree one by one. And the second method is known as the heapify method.
compared to both heapify method is a better way to do the insertion process, but we have two options with us. तो मैं दोनों को डिस्कस करते हैं. Let us take some elements. Let the elements be कुछ भी नहीं लिखते हैं. Let the elements be 56, 34, 67, 12, 23. ठीक है. If I'll be taking this element, ठीक है, according to heapify method, according to insertion by end to end or insertion one by one method, क्या होगा? I'll be taking the very first element, जो भी randomly तुम्हें मिला होगा 56 as the root node. ठीक है. Then अगर मेरी रिक्वायरमेंट है पहली बात तो इसको मिन हीप बनाना या मैक्स हीप बनाना. ठीक है. अब 56 मैंने रैंडमली जो फर्स्ट नोड था, जो भी मेरी लिस्ट में फर्स्ट नोड था, हीप ट्री बना रही हूँ मैं मिन हीप के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू इंसर्शन बाय वन टू एंड और वन बाय वन. 56 लिया, देन द सेकंड एलिमेंट आई विल बी प्लेसिंग इट एज द लेफ्ट चाइल्ड 34. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड 34 जो है रूट नोड से छोटा है, बट मैं मिन हीप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई नीड द स्वैपिंग. मैं इनको स्वैप करूंगी, यानी कि आई विल बी प्लेसिंग 34 ओवर हियर एंड आई विल बी टेकिंग 56 एट द लेफ्ट ऑफ इट. ठीक है. द नेक्स्ट एलिमेंट इज 67. ऑब्वियसली ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए मैंने उसको उसके राइट में प्लेस करना है. राइट में प्लेस किया. अगर राइट में प्लेस किया तो वो एज कंपेयर टू 34 बिगर था. इट्स ट्रू. पढ़ा रहने दो. ठीक है. द नेक्स्ट एलिमेंट आई नीड टू टेक इनटू कंसर्न इज 12. अब 12 कहां पे जाएगा? 56 का लेफ्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी. ठीक है. जब मैंने इसको 12 को यहाँ प्लेस किया, मैंने चेक किया वो तो अपने पेरेंट से छोटा है, तो देयर इज द नीड ऑफ स्वैपिंग. तो 12 कहाँ गया? यहाँ पे. ठीक है. तो ये क्या बन गया? 34, 12, 56 और इधर राइट साइड पे 67. बट जब 12 की स्वैपिंग हुई तो उसको उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के साथ भी हमने कंपेयर करना है. पेरेंट के साथ कंपेयर किया, ग्रेट पेरेंट के साथ भी कंपेयर करना है. तो 12 इज कंपेयर विद 34, फिर स्वैपिंग होगी. तो कहाँ आ गया? 12 यहाँ पे आया, 34 यहाँ पे आया लेफ्ट पे, 67 राइट पे गया और उसके लेफ्ट पे 56 आया. 12 की इंसर्शन ऐसे हुई. उसने आफ्टर 2 मूव्स अपनी कंसर्न पोजीशन ले ली, रिक्वायर्ड पोजीशन. नेक्स्ट इज विद 23. अगर मैं 23 की बात करूं, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए मुझे 23 को इसके राइट साइड पे ऐड करना है. ठीक है. देन 23 का कंपैरिजन मैंने किससे करना? उसके पेरेंट से. पेरेंट क्या है? 34. देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग. तो ये क्या होगा? 12. ठीक है. उसके लेफ्ट में आ जाएगा 23, उसके लेफ्ट में 56 था ऑलरेडी, और ये 23 किसके साथ स्वैप हुआ? स्विच हुआ 34 के साथ. तो उसका जो 12 का राइट है दैट इज 67 ऑलरेडी. तो नाउ ऑल द एलिमेंट्स आर कवर्ड. अब 23 जब 12 से कंपेयर हुआ, इट इज इन इट्स करेक्ट पोजीशन, तो वो स्वैपिंग की नीड नहीं रहेगी हमें. तो अब अगर इस फाइनली चेक करूं तो दिस इज अ मिन ट्री, मिन हीप ट्री. डू यू एग्री? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. नहीं है. No, ma'am. ऑल ऑफ यू एग्री? फाइन. इंसर्शन बाय एंड टू एंड और वन बाय वन. एक एक एलिमेंट लेना. सबसे पहला एलिमेंट रूट नोड बनाओ, दूसरा एलिमेंट लो. अगर मेन हीप बना रहे हो तो देखो मिनिमम ऊपर आ जाए, स्वैप कर दो. फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, राइट चाइल्ड बनाना है. हमेशा जब भी नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करवाना है, यू हैव टू कंपेयर इट विद इट्स पेरेंट नोड. अगर सिंगल पेरेंट है जैसे रूट नोड के साथ तो एक बार कंपैरिजन होगा. अगर उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो टिल द root node is achieved you have to compare it with each and every value.
जहां पे वो फॉल्स होगा वहां पे रुक जाना, ये नहीं। अब जैसे मैं बात करती हूँ, लेट इट बी कोई भी एक बड़ा सा मेथड ले लो, ठीक है, ये लिया ये लिया। नाउ अगर मैं इस एलिमेंट को इंसर्ट करने की बात करूं, इस एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट में इंसर्शन कर रही हूँ, इसको इंसर्ट करते वक्त आई नीड टू कंपेयर इट विद दिस एलिमेंट, ठीक है। अगर उसने स्वैपिंग हुई उसकी, देन ओनली आई नीड टू कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू उसके पेरेंट से। अगर स्वैपिंग ही नहीं हुई फिर मेरे को आगे कंपेरिजन में नहीं जाना। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ कंपेरिजन है। Yes, बाकी ma'am. तो हम ऑर्डर में ही बना रहे हैं, नीचे नीचे हम तभी मूव कर रहे हैं जब ऊपर वाला ऑर्डरिंग कर रहे हैं उसकी वन बाय वन। लेकिन अगर वो कंपैरिजन फॉल्स जाता है तभी हम उसको उसके हायर पेरेंट से कंपेयर करते हैं, टिल इट बी कंपेयर्ड विद रूट पेरेंट। अगर वो अनसेटिस्फाइड हो ही जा रहा है बार बार, अगर एक पे भी सेटिस्फाई होता है और रेस्ट पेरेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करना, उसकी इंसर्शन वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. इसके लिए कोई एक रैंडम एग्जांपल लेके देखना खुद से, तुम्हें पता चलेगा इंसर्शन एंड टू एंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है जो इंसर्शन का, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद डिलीशन, देन ओनली वी कैन गो फॉर द हीप सॉर्ट प्रोसीजर एग्जैक्टली कि हीप सॉर्ट होना कैसे है। द नेक्स्ट इज द हीपिफाई मेथड of insertion. Let it be again, I'm taking the random elements as 45, then 23, then I'll be taking 34, then I'll be taking 12, then I'll be taking 78 and 19. That these are the elements to be considered. ठीक है। अब according to Heapify method वो क्या कहता है, firstly with the available list of elements, जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं उसका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दो। जैसे 45 इज प्लेस्ड हियर, देन 23, देन 34, देन 12, 78, 19. Fine. Again, Yes, ma'am. my requirement is to create a min heap according to Heapify method. ठीक है, min heap बनाना है according to Heapify method. ठीक है, पहली बात तो इसके इंसर्शन से पहले, क्योंकि Heapify मेथड कहता है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू min heap, देन ओनली यू कैन गो फॉर द इंसर्शन। रैंडमली वो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, पहले उनको एक पर्टिकुलर में कन्वर्ट कर लो। For insertion you have to check whether the tree is in a min or a max heap form or not, then only you can go for the insertion। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, I need to skip the last level। ये लेवल को मैं चेक नहीं करती, तो ये मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस इसलिए हम कहते हैं कम हो जाते हैं, और Heapify मेथड इज अ बेटर मेथड ऑफ इंसर्शन। देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी चेकिंग फॉर दिस लेवल नेक्स्ट टू लास्ट लेवल। अब when 34, and we have to start from the right most end and move towards the left till the root node is achieved। अब when 34 को हम स्टार्ट करें, लास्ट लेवल का लास्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टू लास्ट लेवल का लास्ट एलिमेंट है, 34 का एक ही नोड है, चाइल्ड नोड लेफ्ट 19। अब क्योंकि मैंने मिन हीप बनाना है तो 34 बड़ा है, तो देयर इज अ नीड की 19 यहाँ आ जाए एंड 34 यहाँ चला जाए। ठीक है, वो स्वैप हो गए। नाउ नेक्स्ट नीड इज, अब 34 के लेफ्ट में जाऊंगी तो देयर इज अ नोड 23। What I have to do is I have to compare 23 with their child nodes। अब 23 जब कंपेयर हुआ 12 and 78 से, तो 12 is smaller, तो what is the need कि 23 को 12 के साथ हमने स्विच कर दिया, 12 इधर आ गया, 23 इधर चला गया, देन 78 इधर आ गया। ठीक है, अब इनका पेरेंट नोड क्या था, 45। अब ये वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है,
34 और 23 दोनों नोड्स कवर हो गए तो लेवल कंप्लीट है। अब इसका हायर लेवल देखेंगे, दैट इज ओनली सिंगल नोड, दैट इज अ रूट नोड 45। अब 45 को किससे कंपेयर करना है? 12 एंड 19 से, क्योंकि 12 इज स्मॉलर, ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू स्विच 45 विद 12, तो 12 विल मूव टू द रूट नोड एंड 45 विल कम टू लोअर नोड। जब 45 लोअर नोड में जाएगा तो देयर इज अ नीड टू अगेन चेक फॉर द मोर लोअर नोड्स, उसका फर्दर लोअर नोड के साथ उसका कंपैरिजन चेक करना। 43, 23 और 78 में से किसके साथ स्विच होना चाहिए? दोनों में से ज्यादा छोटा कौन है? क्योंकि मेन हीप बना रहे हैं 23, तो 45 जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 23 मूव करके 45 विल एक्वायर दिस पोजीशन। अब ये मिन हीप बन चुके हैं, ठीक है। अब मिन हीप बनने के बाद इंसर्शन इज डायरेक्टली, इंसर्शन कैसे होगी? कोई भी नया एलिमेंट है, लेट इट बी 49 is to be inserted. What I have to do is I have to place 49 over here to the last leaf node. लीफ नोड के नेक्स्ट जो भी पॉसिबल नोड होगा उसके साथ में इंसर्ट करोगे। इसका राइट चाइल्ड मिसिंग था तो मैंने 49 यहाँ इंसर्ट किया। व्हेन आई कंपेयर 49 विद 19, क्योंकि वो ट्रू है, 19 हायर पोजीशन पे ही है, 49 इज एट द लोअर पोजीशन, तो सेटिस्फाई करा, नो नीड ऑफ स्वैपिंग इज डन। 49 अपनी करेक्ट पोजीशन पे। अगर लेट इट बी दिस इज द ओनली एलिमेंट 9, 49 की जगह सिर्फ मैं 9 लेती, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कंपेयर 9 विद 19 ओनली। AP5 में देखो ना, अगर वो सारे अरेंज्ड हैं और उसका मिन हीप मैक्स हीप ऑलरेडी बना हुआ है, जो इंसर्शन में क्या था, 1 by 1 बन रहा था, जैसे जैसे इंसर्ट हो रहे थे वो अपने आप बन रहा था। इसको पहले हमने कन्वर्ट करने के बाद देन द इंसर्शन इज इजी।